Good morning, students. Chapter number 7 Sahatiha Karyasadhika. Sahati means together in a unity. Karyasadhika means if we are doing work, it can be accomplished if we will do work together in a unity, especially in a unity. Hitopadesh is a famous collection of stones in Sanskrit. The writer is Pandit Narayan. It is believed that this work was composed in the 9th century AD. In this work, there are many fables which have a moral. One of those stories is presented here. In this story, the importance of organization is described. Organization means कोई भी छोटे से छोटा काम हो, but if you are planning in a proper way, if you are doing properly organization of any work, तो वह वर्क अच्छे से complete होगा. First thing is what? We have to complete our work in a unity, and then we have to organize the situation how we will complete this work. But the background has been presented in a very different manner. If we are constantly suspicious, we may not be able to get anything to eat or drink. Hence, one should not be suspicious and get into one's work with courage. When one begins to do this, if problems are created due to qualities like greed, then it is organization which helps. कभी कभार क्या होता है कि जो दिखता है वह सही से दिखता है, जो वह नहीं होता है. सो समटाइम इट इज़, वो बोलते हैं कि कोई चीज़ ऐसी दिखती है जो हमने पहले कभी ना देखी हो ना सोची हो. अनयूजुअल थिंग्स यू कैन से. तो ऐसे हमको किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए. सो what we should do when we are watching any suspicious thing. So that things they are teaching here. This is the moral that can be got from this story. If the animal kingdom can live in an organization, human society too should try to live in a similar manner. If we can see ant, अगर आप चींटी देखते हो या तो कोई भी ऐसे बर्ड्स देखते हो, जब आप खुले आकाश में बर्ड्स देखते हो तो कैसे एक साथ उड़ते हैं. वी कैन टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम देम. व्हेन एंट इज गोइंग, सो वन बाय वन आफ्टर दैट. आपने कभी देखा है कि क्राउड में गई हो? नहीं देखा होगा. दे ऑल आर गोइंग वन बाय वन in a line they are going. So we should take example from that. It is very important to learn from every parts of a nature. कोई भी उदाहरण लोगे तो वो समझ में आएगा कि यूनिटी में ही कार्य सिद्ध होता है. एक छोटी से छोटी चींटी होती है, उसको बड़े से बड़ा अगर सांप भी उसको वो ले जाना चाहती हो तो वो सांप को भी ले जा सकती है इफ़ दे आर इन अ ग्रुप, इफ़ दे आर यूनिट टुगेदर. सो वी हैव टू टेक एग्जाम्पल. This is also suggested in the story. As you look at the story from the point of values, also remember that you have to learn the various past tense forms of the verbs used in the lesson. So especially past tense form, it is we ta or na. ta जो आता है वह हमेशा एक वचन में आता है और न बहुवचन में. So that we are going to learn in this lesson. So now we are going to begin lesson. अस्ति गोदावरीतीरे विशालः शाल्मलीतीरो. अस्ति means it was. Godavari means on the banks of a Godavari tir. Shalmali taru, it is a silk cotton tree. सिल्क का जो पेड़ होता है ना, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं. देयर वॉज अ शाल्मली तरु, अ ट्री विच नेम शाल्मली. सो यहाँ पर एक पेड़ था जिसका नाम था शाल्मली. इट इज़ अ सिल्क कॉटन ट्री. विविधेभ्य देशेभ्यः समागताः बहवः विहगाः तत्र रात्रौ निवसन्ति. विविधेभ्य means different kind of birds. Deshebhyah from the different countries. Samagatah means those who has come. Bahava means many, lots of. Vihagaha means birds. Tatra ratro nivasanti, they are living in a night there. वो लोग क्या करते थे? Many birds who has come from various countries used to stay there at night. तेषु लघुपतनकनामा
वायसः अपि एकतम अस्ति। तेषु मीन्स अमॉन्ग देम हु वाज देयर लघु पतनक नाम वन हु it means what one who flies away. He was the king of birds. Who was that? Vyasa means it is a crow. यहाँ पर वो एक क्रो था, उसके बारे में बात हो रही है, जिसका नाम था लघु पतनक नाम। अथ कदाचित् प्रभातकाले स वायसः कृतान्तं द्वितीयम् इव अटन्तं व्याधम अपश्यत। त अपश्यत मीन्स उन्होंने क्या देखा? कृतान मीन्स इट इज़ अ गॉड ऑफ डेथ, यानी जो व्याध होता है, जो शिकारी होता है, पशुओं के लिए क्या होता है? गॉड ऑफ डेथ, लाइक यमराज। उन्होंने क्या देखा कि प्रभात काले स वायस्य कृतांत, एक व वायस्य क्या देखा? द्वितीयम यानी दूसरा जो बोलते हैं, जो विच इज़ अ व्हाट देव सो हंटर इन अ सेकंड गॉड ऑफ अ डेथ। उन्होंने क्या देखा कि यह तो हमारे लिए एक यमराज के समान है, क्योंकि जब व्याध को देखते हैं, व्हेन दे आर वाचिंग हंटर, उन लोगों को पता है कि अब हमारी मौत आई है, ऐसा उनको लगता है। तम अवलोक्य स अचिंत्यत अद्य प्रातः एव अनिश्च दर्शनम संजातम न जाने तत किम अनिभिप्रेतम दर्शयिष्यति। What happened? Tam avalokya means what they have seen. Sa achintya, they have thought. What? Adha pratayava, in morning only. प्रातः उन्होंने क्या देखा कि मॉर्निंग में ही उन्होंने क्या देखा? हंटर, दे सो हंटर। अनिष्ट दर्शनम संजातम, अनिष्ट दर्शनम मीन्स साइट ऑफ इन अनऑस्पिशियस, कुछ अनहोनी होने वाली है। संजातम मीन्स इट विल टू प्लेस, तो क्या होगा कि अब कोई अनहोनी होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। न जाने तथा किम अनिभिप्रेतम दर्शयिष्यति, किम अनिभिप्रेतम मीन्स व्हाट अनडिजायरेबल, जो सोचा नहीं ऐसी अनहोनी होने वाली है। दर्शयिष्यति विल शो, मुझे लगता है कि जब से मैंने इसको देखा है, सो व्हाट बैड थिंग टुक प्लेस, आई एम थिंकिंग लाइक दैट, कुछ बुरा होने वाला है। इंसान को कभी अंदेशा हो जाता है कि नहीं, कुछ गलत होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। सो समथिंग बैड सिचुएशन विल टुक प्लेस इफ वी हैव सीन दिस हंटर, समथिंग इज गोइंग टू हैपन अनडिजायरेबल, जो सोचा भी नहीं था वैसा होगा। इति विचिन्त्य स व्याकुलः संजातः, इति विचिन्त्य मीन्स thus thinking by this व्याकुलः संजातः, they have become unhappy, वो लोग दुखी हो गए कि ये सुबह सुबह हमने हंटर को देख लिया। सो समथिंग बैड थिंग इज गोइंग टू हैपन टू अस, हमने सोचा भी नहीं होगा वैसा होगा। इट इज कॉल्ड सिक्स्थ सेंस, इट इज कॉल्ड समथिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज बैड थिंग इज गोइंग टू हैपन, उसका अंदेशा हमें पहले से हो जाता है, उसकी जो अनहोनी की जो आहट होती है वो हमें पता चल जाती है। अथ तेन व्याधेन तंडुलकणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम। अथ तेन व्हाट हैपन, दे हैव सीन बाय हंटर व्हाट हैपन, तंडुलकणान यानी जो चावल होते हैं, उसके जो कण होते हैं, जो डिफरेंट जो राइस होते हैं, उससे क्या कर दिए? जालम विस्तीर्णम, ही हैज स्प्रेड राइस ऑन द जाल, जाल पर उन्हें जो चावल थे वह फैला दिए। स च वृक्षस्य पृष्ठभागे प्रच्छन्न भूत्वा अतिष्ठत, यहाँ पर अतिष्ठत यानी फिर से भूतकाल का स्वरूप आया, एक वचन का। उसने क्या किया? स च वृक्षस्य, देन व्हाट ही इज डन, पृष्ठभागे ऑफ अ वृक्ष, वह वृक्ष के पीछे छुप गया। प्रच्छन्न भूत्वा मीन्स, प्रच्छन्न भूत्वा मीन्स बीइंग हिडन, वो किसके पीछे छुप गया? अतिष्ठत मीन्स ही इज हाइड बिहाइंड द ट्री, एंड वहाँ पर खड़ा रहा, वहाँ पर अतिष्ठत यानी वहाँ पर छुप गया और वहाँ पर खड़ा रहा। तस्मिन् एव काले चित्रग्रीव नाम कपोतराजः परिवारेण सह गगने व्यस्पर्ध, जब ये जो क्रो था उन्होंने सोचा और ये सब
उसके बाद जो सिचुएशन थी यह हुई कि क्या हुआ, जो व्याध था, जो हंटर था, उन्होंने जाल पर जो अनाज के दाने उसने स्प्रेड कर दिए ताकि वह कोई किसी को फंसा सके जाल में। एंड ही हैज़ डन सेम वे। और क्या किया, तस्मिन् एव काले चित्रग्रीव नाम कपोतराज परिवारेण सह गगन व्यसपर्थ। यहाँ पर क्या हुआ, व्यसपर्थ मीन्स दे वॉज गोइंग, वी असरपथ, इट इज अ वी असरपथ। हु वॉज गोइंग, चित्रग्रीव नामक कपोतराज परिवारेण सह गगन, वह अपने परिवार के साथ वह क्या कर रहा था, वह उड़ रहा था। एंड चित्रग्रीव नाम यानी एक जो कपूत का राजा था, द पिजन का जो राजा होता है, वह वहाँ से अपने परिवार के साथ गगन में वह उड़ रहा था। भूमो विकीर्णान तंडुल कणान दृष्टवा, भूमो विकीर्णान यानी जो जमीन पर फैले हुए जो कण थे, जो राइस के जो कण थे उन्होंने देखे। तंडुल कणा दृष्टवा मीन्स उसने देखा कि यहाँ पर जमीन पर जो राइस है वह कैसे आए। अनयूजुअल थिंग जब हम देखते हैं तो हमें पहले स्ट्राइक होना चाहिए। जैसे कि आप रास्ते पर जाते हो और 100 रुपये की और 1000 रुपये की नोट ऐसे ही पड़ी हुई दिखती है, तो ये पॉसिबल जल्दी से नहीं होगा, क्योंकि कोई भी यह चीज़ ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। तो यह चीज़ ऐसे क्यों पड़ी है, कुछ भी अनयूजुअल थिंग लगे कि भाई इतनी महंगी चीज़ रास्ते पर तो नहीं होती है। तो कपोतराज ने भी सोचा कि यह जो तंडुल कणान है वो जंगल में कैसे, जंगल में तो घास फूस होता है, झाड़ पान होते हैं और कुछ नहीं होता है, तो यह जो दूसरी अनयूजुअल थिंग है वह यहाँ पर कैसे। ततः स कपोतराज तंडुल कण लुब्धान कपोतान अकथयत, उन्होंने देखा कि यह सब क्या है। लुब्धान मीन्स दे बिकम ग्रीडी, उसमें से जो थोड़े जो पिजन थे उनको वो लालच आ गया कि चलो भाई यहाँ पर तो रेडीमेड मिल रहा है तो खा लेते हैं। और फिर क्या हुआ, ततः स कपोतराज तंडुल लुब्धान कपोतान अकथयत कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणान संभव। सो इज दैट पॉसिबल, फ्रॉम वेयर निर्जन वने इन दिस लॉनली फॉरेस्ट, ऐसा कैसे हो सकता है कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल। तन्निरूप्यताम तावत मीन्स वी शुड थिंक इट केयरफुली, वी शुड नॉट बिलीव विच इज विजिबल टू अस। जो दिख रहा है वह कैसे पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पर ऐसे अकेले जंगल में जो राइस के दाने हैं वह कैसे आ सकते हैं। सो हाउ इट कैन बी पॉसिबल। भद्रम इदम न पश्यामि, भद्र मीन्स गुड एंड हियर इट इज़ अ भद्रम इदम, इट इज़ नॉट गुड, न पश्यामि, ये इसमें मुझे कुछ राइट नहीं लग रहा है। समथिंग इज रॉन्ग, वी आर नॉट टेलिंग समटाइम इट इज समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, सो इट इज़ नॉट गुड थिंग, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अनहोनी होने वाले हैं। अनेन तण्डुलकणलोभेन अस्माकं महदनिष्टमिपि भवति महति, मीन्स भवितुम अर्हति मीन्स इट मे टर्न आउट इन व्हाट, इन अ वेरी रॉन्ग वे। सो दे आर थिंकिंग, सो समथिंग थॉटलेस एक्शन शुड बी डन, कुछ गलत होने जाने वाला है। सो वी शुड नॉट बिलीव दैट। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस greed of rice grains, even some great misfortune may be fall to us, something कुछ बुरा हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। So what we should do, अतः सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, अतः सर्वथा मीन्स हमेशा, सदैव हमें क्या करना चाहिए, अविचारित, विदाउट थिंकिंग, थॉटलेस काम जो है, थॉटलेस एक्ट है वह हमें नहीं करना चाहिए। कर्म न कर्तव्य, वी शुड नेवर डू थॉटलेस वर्क, वी शुड थिंक इट प्रॉपरली एंड देन ओनली वी टेक एनी एक्शन, देन ओनली। यतः क्यों, बिकॉज सुजीर्णम अन्नम मीन्स सुजीर्णम यानी विच फूड इज वेल डाइजेस्टेड, जो सही से खाने वाला जो अनाज होता है, विच फूड इज़ वेरी, जो हमें सही से, जो हमने जिस फूड को हमने खाया है
सुजीर्णम अन्नम मीन्स अच्छे से डाइजेस्ट करना हो अगर, तो उस खाने को हमें अच्छे से खाना चाहिए। जो वेल डाइजेस्ट होता है ऐसे ही अनाज को हमें, वही फूड को हमको खाना चाहिए। सुविचक्षण मीन्स which is very smart, those who are very well thought, those who are very well thought, it is uh, about human being. Sushasita, well managed. श्री नृपति सुसेविता मीन्स नृपति जो नृपति होता है अगर सुसेविता मीन्स वेल सर्व्ड। सुचिंत्य, सुचिंत्य मीन्स वेल थॉट, दोज आर हैविंग अ वेल थॉट, दोज आर हैविंग अ, किसी काम को अच्छे से करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसको अच्छे से सोचना पड़ता है। यत कृतम, व्हाट इज डन, इट इज अ यत कृत, इट इज अ यत कृतम मीन्स व्हाट इज डन। सुदीर्घ काले अपि न याति विक्रियाम, सुदीर्घ काले अपि मीन्स अ लॉन्ग पीरियड ऑल्सो विक्रिया न याति, सो इट इज अ नॉट गोइंग टू स्पॉइल। ये ऐसे जो चीज़ें होती हैं वह कभी भी विनाश नहीं होती हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, दूर के लिए सोचना है, तो व्हाट वी शुड डू, वेल डाइजेस्टेड फूड, वेरी क्लेवर सन, वेल मैनेज हेल्थ, एंड द किंग हु इज वेल सर्व्ड। समथिंग सेड आफ्टर थिंकिंग प्रॉपरली, वॉट एवर इज डन आफ्टर गिविंग इट इज अ गुड thought, do not get spoiled during the course of quite a long period of time. अगर लॉन्ग पीरियड के लिए हो या शॉर्ट टर्म के लिए हो, बट दिस काइंड ऑफ थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन आवर माइंड। रेगुलरली वी हैव टू बिहेव लाइक दिस। ऐसे जो वेल मैनेज होते हैं, जो वेल डाइजेस्टेड होते हैं, जो वेल सर्व होते हैं, किसी भी चीज़ को अच्छे से करने से वह चीज़ का जो परफेक्शन होता है वह हमें आगे जाकर बहुत ही काम आता है। सो ऑलवेज वी शुड बी पर्टिकुलर विच थिंग वी आर गोइंग टू डू। एतद्र वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम वदत, हा किम एव उच्यते। एतद्रचनं मीन्स इन दिस स्पीच, सदर्पम श्रुत्वा मीन्स उसको सुनने के बाद, कश्चित् एक जन ने क्या बोला, एक कपोत ने क्या बोला, सदर्पम अवदत मीन्स प्राउडली ही स्पोक। आह किम एव उच्यते मीन्स किम एवं उच्यते मीन्स हु इज इट इज सेड। आप ऐसा बोल रहे हो, आप कबूतरों के राजा, जो वो कबूतर के राजा को बोल रहा था, आप कहो वाई इट इज सेड लाइक दिस। हियरिंग बाय दिस सर्टेन पीजर सेड प्राउडली, आह वाई इज इट इज सेड लाइक दिस। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं। जो पहले के ज़माने में जो भी किसी ने कुछ बोला, वाई दे आर सेइंग लाइक दिस। जो कपोतराज था बड़ा ही अनुभवी था, बड़ा ही समझदार था, तो वह बोला, वह किसी को समझ में आए ना आए ऐसा था। तो जो यंग कबूतर था वह प्राउडली बोला कि ऐसा क्यों है। वृद्धानां वचनं ग्राह्यम आपत्काले उपस्थिते सर्वत्रैव विचारेण भोजन प्रवर्तनम। सो वृद्धानां वचनम, आफ्टर लिसनिंग बाय दिस, जो बोले हुए वचन जो होते हैं, देन वचनम ग्राह्यम मीन्स वी शुड एक्सेप्ट दैट व्हाट दे सेड। हमें उसको समझना चाहिए, जो बोला जा रहा है उसको हमें क्या है, कैसे है, क्यों, उसकी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड दैट थिंग्स। जब ऐसी कोई कैलेमिटी आने वाली हो तो उसको हमें ऐसे आर्ग्यूमेंट में इसको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट एडवाइस इज गिवन बाय अवर ओल्ड पीपल, इट शुड बी एक्सेप्टेड। आपातकाल ही उपस्थित है, यानी यह आपातकाल के लिए होती है, यानी इन दिस कैलेमिटी सिचुएशन वी शुड नॉट आर्ग्यू विद दैम। सर्वत्र एव विचारेण भोजनप्य प्रवर्तनम, भोजन अपि अप्रवर्तनम मीन्स there will be no activity. If we are thinking like this, so there will be no activity means जो thinking thus every time even eating food will be impossible। यह बोला जाता है क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, but it is said by all people, so we should not be greedy, we
listen them, we understand them. Uktam cha, and it is said. Shankabhi सर्वमाक्रांतमनं पानं च दुर्लभं प्रवृत्तिः कुत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथम नु वा. Shankabi means what? By doubts. Sarvam akrantam annam. Sarvam akrantam. Here word is what? Sarvam akrantam. By everything is pervaded. Panam cha durlabham. Pravruttiha kutra kartavyah. Pravrutti kutra kartavya means where it should be proceed. Jivitavyam katham nuva means jivitavyam means how to live. Katham nuva means surely either this or that. So what is the meaning of this? Everything is pervaded by doubts. Food and water are difficult to get. Where should activity be proceeded? How indeed should life be lived? ऐसे सब चीज़ों में हम डाउट करते रहेंगे तो हम कैसे जिएंगे? How we should live if we will think small doubts in everything. तस्य तदवचनं श्रुत्वा सर्वे कपोताः तत्र जाले उपाविशन् अनन्तरं ते सर्वे जालेन बद्धा अभवन्. तस्य तदवचन मीन्स यह सुनने के बाद व्हाट हैपन, उसके वचन सुनने के बाद तत्र जाले उपविशन मीन्स दे ऑल सेट डाउन ऑन दैट नेट. एंड व्हाट हैपन? अनंतरम ते सर्वे जालेन बद्धा अभवन. उसके बाद क्या हुआ? देन व्हाट हैपन? जालेन बद्धा, दे ट्रैप्ड इन अ जाल. आफ्टर हैविंग हर्ड दैट स्पीच ऑफ हिज हु कपोतराज ऑल द पिजन सेट डाउन. उसकी बात सुनकर कुछ जो यंग पिजन थे उन्होंने आर्गुमेंट भी किया. बट ओल्ड पीपल यानी जो हमारे जो अनुभवी लोग होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, उसके अनुभव से हमें समझाते हैं. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सुना और उसको सुनकर वो जाल पर बैठ गए और ट्रैप भी हो गए, मुसीबत में भी आ गए. बट उन्होंने क्या सोचा था? कुछ प्लान बनाया था कि उसको कैसे उसमें से कैसे बचा जाए. अनंतरम ते सर्वे जालेन बद्धा अभवन. वह सब ट्रैप हो गए जाल के अंदर. अथ जालबद्धा ते यस्य वचनेन तत्र समपतन तस्य कपोतस्य तिरस्कारं कुर्वन्ति स्म. आफ्टर ये सुनने के बाद क्या हुआ? जाल में ट्रैप होने के बाद ते यस्य वचनेन तत्र समपतन तस्य कपोतस्य तिरस्कार कुर्वन्ति स्म. यानी दे trapped now bound by the net, they criticize the pigeon by listening to whose advice they got there. उसकी एडवाइस सुनने के बाद वो लोग जाल में फंस गए. तो यह बात से वो उनको तिरस्कृत करने लगे, उनको बोलने लगे कि बिकॉज ऑफ यू वी हैव ट्रैप्ड इन अ नेट. तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रगीव अवदत. उसके तिरस्कार को सुनने के बाद चित्रगीव ने क्या बोला? विपत्त काले विस्मय एवं का पुरुष लक्षणम. यानी जो विपत्त काल होता है, जब तकलीफ का जो कोई समय आता है तो क्या करते हैं? विस्मय यानी जो वंडर होता है, एवं का पुरुष लक्षण यानी जो कॉवर्डली जो पर्सन होता है वही ऐसा सोचता है, वह एक दूसरे को ब्लेम करते हैं. जो होशियार होते हैं, जो हमेशा स्मार्ट होते हैं, वह सोचते हैं कि अब क्या करें और कैसे बचा जाए. सो चित्रग्रीवास व्हाट सेड? इट इज सरप्राइज्ड इन डिफिकल्टी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ कवर्डली पर्सन. सो वी हैव टू गेट करेज. तत्र धैर्य अवलंब्य इदानीम एव क्रियताम. सो you have to be very calm and we have to think now what we can do. ऐसे सोचकर हमें ऐसे वीक जैसा हमें नहीं सोचना चाहिए. हमें उसकी मुसीबत में से कैसे निकला जाए, संकट में से कैसे बाहर निकला जाए, ये हमें सोचना चाहिए. सर्वे एकचित्ती भूय जालमादाय उड्डीयताम्. नाउ व्हाट इज गिवन इंस्ट्रक्शन टू ऑल पिजन्स? लेट्स ऑल फ्लाई टुगेदर विथ अ विंग्स. हमें एक साथ उड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम इसमें से बच नहीं पाएंगे. हमें ये मुसीबत जो सामने आई उसका सामना भी करना है, अच्छे से करना है. इफ someone is going in right and someone is going in left side, so we will be trapped more in this net.
अगर हमें इस जाल से बाहर निकलना है तो एक साथ मिलकर हमें उड़ना पड़ेगा। यतः देन अल्पानाम अपि वस्तुनाम संहति कार्यसाधिका। अल्पानाम अपि वस्तुनाम बाय इवन स्मॉल थिंग्स, मैंने जैसे आपको चींटी का उदाहरण दिया था कि एक छोटी सी चींटी भी बड़े से सांप को तान सकती है, उसको खींच सकती है। तो वह कैसे होगा, वैसे एक से तो नहीं होगा। सो अगर थोड़े भी होते हैं, अगर इफ़ यू आर स्मॉल थिंग, इफ़ यू आर वेरी लेस, इफ़ यू आर स्मॉल थिंग, सो हाउ वी कैन डू, बाय संहति कार्यसाधिका। इन अ यूनिटी यू कैन कंप्लीट योर वर्क। अगर अकेले करोगे, एक साथ नहीं करोगे, कोई करेगा, कोई डिसएग्री करेगा, कोई एग्री करेगा, अगर ऐसे करोगे तो आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तृणे गुणत्व मापन्ने बंध्यते मतदंतिनो। तृणे गुणत मीन्स it is a telling about toes. So if the huge elephant in a very soft ground can be tied with the rope made, it is made out of blades of grass. ऐसा ज़रूरी नहीं है, जो घास होता है ना उससे भी क्या होता है, हम उसको जो घास का रोप बना सकते हैं, उससे जो मदमस्त हाथी होता है उसको भी हम बांध सकते हैं। तो ये तो छोटे से ये तो एक शिकारी है, उसको हम ऐसे कैसे ऐसे हम फंस सकते हैं, हम भले ही कम क्यों ना हो हम उसको हरा सकते हैं। एक तृण से बंधे हुए जो हाथी को भी अगर हम, जो मदमस्त हाथी होता है वह तृण के बने हुए जो रोप से अगर वह बंधा जा सकता है, तो हम तो एक बुद्धि का कार्य करने जाने वाले हैं। इति विचिन्त्य सर्वे कपोता जालम आदाय उत्पत्तिता। यह सुनने के बाद व्हाट हैपन उत्पत्तिता, दे फ्लू, ऑल फ्लू टुगेदर, सर्वे कपोता ऑल फ्लू टुगेदर विद देयर विंग्स। ततः सह व्याध तानो जाल पहार कान अवलोक्य पश्चात धावती। ततः स व्याध, व्हाट दे हैव डन, ऑल द व्याध ने क्या किया, तानो जाल पहार कान अवलोक्य, उन्होंने देखा कि दे आर कैरिंग अवे देयर नेट। दे हैव से, जो हंटर था उसने क्या देखा कि ये तो मेरी जाल लेकर ही चले गए। पश्चात धावती, वो उसके पीछे दौड़े। ही हैज़ रन बिहाइंड दैट बर्ड्स दोज हु आर टेकिंग अवे हिज नेट। परंतु तान सुदूरम गतान दृष्ट्वा व्याध प्रतिनिवृत्तः। He came back. He has seen that these birds are flying with the net so far away. So it is not possible to go far away. They are flying in the sky. So it is not possible to run behind them. So he has come back. परंतु तान, यानी उन लोगों को ऐसा, यहाँ तान, तान मीन्स अगेन इट हैज कम पास्ट टेंस रूप, तान, सो इट इज अ बहुवचन। उन्होंने क्या देखा कि यह सब लेकर उसके नेट लेकर उड़ गए। सो ही हैज कम बैक। लुब्धकम निवृत्तम दृष्ट्वा चित्रग्रीवः अवदत। यहाँ पर उन्होंने क्या देखा, लुब्धकम निवृत्तम दृष्ट्वा, हैविंग सीन द हंटर गॉन बैक, उन्होंने क्या देखा कि ये जो हंटर है वह चला गया है। एंड देन व्हाट इज दे हैव डन, अवदत, देव स्पोक, हिरण्यक नामकस्य मम मित्रस्य मूषकराजस्य समीपे वयम गच्छाम। मेरा एक मित्र है जो मूषक राज है, यानी जो उंदर है, जो रैट है, उसका राजा है। हिरण्यक नामस्य, उसका नाम क्या है, हिरण्यक। व्हाट ही विल डू, समीपे वयम गच्छाम, सो वी विल गो विथ हिम, हम उसके पास जाएंगे। स अस्मान बंधनात् मुक्तान करिष्यति, ही विल फ्री अस फ्रॉम दिस बॉन्डेज ऑफ नेट, हमको यह नेट से वह मुक्त करेगा। ततः ते मूषकराजस्य समीप समगच्छन, उन लोगों ने क्या किया, ये मूषक का राज था उसके पास गए। चित्रग्रीवस्य मित्रेण मूषकराजेन स्वकीय तीक्ष्ण दंते सर्वेषां बंधनानि छिन्नानि। बंधनानि छिन्नानि यानी बंधन से मुक्त किया। छिन्नानि मीन्स कट, दे वे कट फ्रॉम द नेट, बाय हुम, बाय मूषकराज, जो चूहों का राजा था। मूषक यानी रैट, जो कपोतराज का मित्र था।
तो उन्होंने क्या किया, स्व किए उसके तीक्ष्ण जो तीत थे, तीक्ष्ण दांतों से उसने वो नेट को कट कर दिया और सारे बंधन को मुक्त कर दिया। चित्तगिव अपि हिरण्यकस्य आभारं मत्वा, उन्होंने उसका आभार व्यक्त किया कि आपकी मदद से हम आज मुक्त हो गए। सपरिवारः यथेष्ट देशान समगच्छत, यथेष्ट यानी अपने देश को सपिजन अपने परिवार सहित वापिस आ गए। समगच्छत यानी they have come back. So students, from this lesson we are learning a very important point. Which point? We have to learn that if we are doing work together, we should get good result only. If we are not doing any work in unity, some are running behind this and that, कोई ऐसे उत्तर में जा रहा है, दूसरा दक्षिण में जा रहा है, तो कभी भी कोई काम हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसमें से एक जो कपोत ये जो एग्जाम्पल दिया गया है इस लेसन में, अगर एक पक्षी ऐसा बोलता कि मैं तो ये नहीं करने वाला हूँ भाई, और वह उड़ने के लिए मना कर देता और डर जाता कि नहीं हम तो जाल में फंस गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा सोचता वह, तो वह वहीं का वहीं फंस जाता और खुद भी फंसता और दूसरों को भी फंसाता। मगर उसने जो कपोतराज था, उसका अनुभव था, उसने उसको माना, उसने फॉलो किया और वह सब बच गए। तो हमेशा जो अनुभवी व्यक्ति होता है उसकी भी हमें बात सुननी चाहिए, ये भी हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है। सो वी शुड लर्न आवर एल्डर्स एडवाइस ऑलवेज, and then only we can get good success. And for main thing is what? We have to complete our work in a unity. So you have to complete all the meanings and exercise which I am giving you in notes. Thank you.